एक मीटिंग एंड हुआ था, दूसरा स्टार्ट हो गया, तो शायद 2 रिकॉर्डिंग भेजने पड़ेंगे। एक कंटिन्यूअस मोड पे पहला वाला आएगा, दूसरे में कितना ब्रेक है पता नहीं। आई चेक एंड अकॉर्डिंगली आई विल अपलोड। So I'm clearing this side, and we will see the next method of purification, which gives us high level of purity, and that next method is called as zone refining. This is the one that really gives us a very high level of purity. ये semiconductors के लिए use होता है. So electrolytic refining and zone refining, both are the methods which give us a very high level of purity. अभी zone refining में कैसे purification होता है? Zone refining में metal to be purified is taken in the form of a rod. It is enclosed in a chamber kept in inert atmosphere. इसके around inert gas होता है, so that no reaction happens with the atmospheric gases. क्योंकि यहाँ पे हम मेटल को हीट करने वाले हैं. So when you are heating a metal at high temperature, metal may react with air. So to avoid this, इसमें noble gas है या inert gas हम यूज कर रहे हैं. So the metal rod is suspended with the clamps. Obviously clamps होंगे. अभी इसमें एक heating coil यूज होता है, and that heating coil is moving and circular induction coil. तो ये metal के अराउंड एक हीटिंग कॉइल होगा. So I'm just explaining you क्या क्या है. ये मेटल रॉड है, ये जो मैंने यहाँ पे अटैच किया है ये है मूविंग सर्कुलर हीटिंग कॉइल. अभी प्रोसेस क्या है? This coil is kept at one end of the rod, and when it is kept at this end, obviously उसके अराउंड का जो जोन होगा वो एक स्मॉल एरिया को ही मेल्ट कर पाएगी. उसे हम शेडिंग दिस पोर्शन कि कितना सा जोन. ओके, क्या हो गया? मोल्टन जोन बन गया. Rest of the rod is solid, but where there is a coil, a very small portion is molten. Now, what is the principle involved in this kind of purification? जो molten zone है उसमें impurity और metal दोनों almost molten stage में होंगे. But जैसे ही coil आगे बढ़ेगी, what is able to crystallize back is pure metal, and what is unable to crystallize is impurity. तो impurity जो है जैसे जैसे coil नीचे आते जाती है,
the impurity will flow down, as impurity crystallize नहीं हो पाती, बट जो प्योर फॉर्म है, जो ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस में कॉइल को हमेशा एक एंड पे रखते हैं और धीरे धीरे, इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस दैट वी विल कीप मूविंग दैट कॉइल इन दिस डायरेक्शन। एज द कॉइल इज मूविंग अहेड, पीछे के पार्ट में जो प्योर पार्ट है वो सॉलिडिफाई होते जाएगा, बट कॉइल के साथ, हीट के साथ impurity will flow down. Once the coil from top has reached down, it has carried some impurity down, and impurity will be there at this end of the rod. अभी ये जो प्रोसेस है, ये बहुत बार रिपीट होता है. This is repeated many a times, and based on number of repetition done, cost of purification will increase. So can be done 100 times, 200 times, same way, and that will give us higher level of purity here. तो ये रिपीट करके बाद में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये वाला एंड जो होगा वो इम्प्योर होगा, जिसको काट देते हैं, और ऊपर का एंड जो प्योर है उसको यूज कर लेते हैं. तो इसको कहते हैं जोन रिफाइनिंग, जिसमें हम इम्प्योरिटी को मूव करके एक एंड पे लेके आते हैं और रेस्ट ऑफ द रॉड जो होता है वो क्वाइट प्योर हो जाता है. व्हाट आर वी मेनली रिफाइनिंग बाय दिस मेथड? Semiconductors like silicon and germanium are mainly refined by using this method. And this method gives us high level of purity. तो ये हो गया आपका zone refining. I'm clearing right hand side of the board and explaining you vapor phase refining. Vapor phase refining very specific method है. We use only for two metals, nickel and zirconium. निकेल के लिए जो वेपर फेज रिफाइनिंग है उस प्रोसेस को कहते हैं बॉन्ड्स प्रोसेस. Only for refining of nickel. So what is a Mond's process? In Mond's process, ये मैंने आपको coordination में explain किया था. We start with nickel, which is in solid state, but this is impure. तो एक चेम्बर में, एक कंपार्टमेंट में हमने ये इम्प्योर निकेल ले लिया. अभी we are treating it with carbon monoxide gas, and we will get the formation of a complex of nickel, tetracarbonyl nickel, which is not a solid, which is in vapor phase. तो वो क्या रहा है, जो impure निकेल है उसमें से सिर्फ निकेल will react, impurity will remain down in solid state, and the pure nickel will go in the vapor phase. तो vapor phase refining
कम मेटल्स का क्यों होता है? क्योंकि वेपर फेज रिफाइनिंग में मेटल को हमको उसके एक गैसियस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, जो बहुत डिफिकल्ट है। और ये गैसियस कंपाउंड भी कैसा चाहिए? जिससे मेटल की रिकवरी हो, जिससे हम मेटल को रिकवर बैक कर सके। तो ये कंपाउंड भी बहुत ज्यादा हाईली एक्सट्रीमली स्टेबल होगा तो नहीं चलेगा, इस कंपाउंड से रिकवरी पॉसिबल हो। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट में हम ज्यादा मेटल्स के लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकते। दिस डजंट वर्क फॉर मेनी मेटल्स। तो निकेल के लिए ये मैम टेट्राकार्बोनिल निकेल बन गया। बोलो बेटा। मैम, लेकिन जोन रिफाइनिंग जो है उसमें हो क्या रहा है, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। जोन रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें जो प्योर फॉर्म है वो आसानी से इजीली रिक्रिस्टलाइज हो पा रहा है, और जो इम्प्यूरिटी कम अमाउंट में है वो रिक्रिस्टलाइज या सॉलिडिफाई आसानी से नहीं हो पाती। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक है। आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल घर पे क्रिस्टलाइजेशन में। अगर कोई सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके हीट करो और उसको बस रख दो कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनेंगे एंड यू कैन क्लियरली सी जो इम्प्यूरिटी है वो नीचे रह जाती है, इम्प्यूरिटी रिक्रिस्टलाइज नहीं हो पाती। तो ये कंसेप्ट पे जोन रिफाइनिंग बना। इट इज इजी टू रिक्रिस्टलाइज अ प्योर सब्सटेंस बट डिफिकल्ट टू रिक्रिस्टलाइज अ इम्प्योर सब्सटेंस। और इसमें हीट हम यूज कर रहे हैं जिससे वो इम्प्योर सब्सटेंस जो रिक्रिस्टलाइज नहीं हो पा रहा है वो फ्लो डाउन करेगा वन एंड पे and will be collected at one end and we can remove it. ये हो रहा है। तो किसी भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में अगर आपने प्रैक्टिकली किया है, आपको क्लैरिटी आएगी कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस के होते हैं एंड इम्प्यूरिटी रिमेन्स इन द aqueous part. It's difficult for an impurity to recrystallize. ये कंसेप्ट है। So I was discussing about vapor phase refining Bond's process. तो इसमें अभी ये टेट्राकार्बोनिल निकेल मिल गया। अभी क्या करेंगे, इसको अलग कंपार्टमेंट में लेके जाते हैं और इसको हम हीट करके ब्रेक कर देते हैं, जिससे फिर से हमको निकेल सॉलिड मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। What is the whole difference? This nickel solid will be pure, as impurities have remained back, and that too in which physical state? Solid state. पहले कंपार्टमेंट में ही वो रह गए। Is that clear? अभी वेपर फेज रिफाइनिंग में और एक मेथड मुझे आपको सिखाना है। नेम ऑफ दैट मेथड इज वैन आल्केल प्रोसेस। This is for refining of zirconium. सिमिलर कंसेप्ट है। तो इसमें क्या किया जाता है, सेम you will start with zirconium solid which is impure and it is treated with iodine. We know that iodine easily sublimes. अभी इसका जो प्रोडक्ट है zirconium reacting with iodine, we get zirconium tetraiodide. ये gaseous है, तो रिएक्शन सिमिलर है। So zirconium solid is converted to a compound zirconium tetraiodide which is gaseous. So only pure zirconium will go and form zirconium tetraiodide और सारे impurities नीचे रह जाएंगे। अभी हम इसके आगे क्या करेंगे,
ये जो जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड है, इसको हीट करके we will recover back zirconium solid, and iodine can be sublimed, and the zirconium solid that we get back is pure. तो इसमें जो gaseous state में कंपाउंड हमको मिल रहा है वो नॉट वेरी स्टेबल होना चाहिए. अगर वो हाईली स्टेबल हो गया तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. So I have in general explained you the complete metallurgical process. अभी मैं आपको थर्मोडायनामिक्स जो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है इस रिडक्शन प्रोसेस में, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ in the time that I have, so that from the next lecture I actually can start with extraction of particular metals. So I will discuss with you thermodynamics of reduction process. I am discussing Ellingham diagram with you, जिसमें हमको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा मेटल हम किस मेटल से रिड्यूस कर सकते हैं, which is a suitable reducing agent for a given metal oxide. Choice of reducing agent समझेगा आपको बिना रटे, और टेम्परेचर फॉर रिडक्शन समझ में आएगा. ये दो चीजों पे क्लैरिटी आ सकती है आपको. ठीक है, तो लेट्स सी अहेड. So this part that I am doing is the important part in this chapter. So I am discussing thermodynamics of reduction process. तो ये जो मैं ग्राफ डिस्कस कर रही हूँ वो मैं मेटल ऑक्साइड के लिए डिस्कस कर रही हूँ. सिमिलर ग्राफ्स वर प्लॉटेड फॉर मेटल सल्फाइड, मेटल क्लोराइड्स आल्सो, एंड दे वर डन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एलिंगम. तो इसके लिए इसको कहते हैं एलिंगम डायग्राम. हमारे करिकुलम में जो डिटेल में है वो मेटल ऑक्साइड का ही ग्राफ है, नॉट फॉर मेटल सल्फाइड एंड मेटल क्लोराइड. सो आई एम डिस्कसिंग मेटल ऑक्साइड का ग्राफ. अभी बेसिक देखो, इस ग्राफ में हम क्या स्टडी कर रहे हैं. वी आर स्टडीइंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड को I can see it as a combustion reaction, जिसमें metal solid is reacting with oxygen gas and it is forming metal oxide जिसकी physical state solid होती है. This is a basic combustion reaction. ये combustion reaction है. Now when I am calling this as a combustion reaction, ये combustion of metal है, तो किसी भी combustion reaction में delta H negative होता है. So this reaction has delta H negative. Can you please comment on delta S for this reaction? Negative. Negative. Is entropy increasing during the process or decreasing? Decreasing. Decreasing, right? Your oxygen, which is in a gaseous state, is getting restricted in metal oxide. तो ये प्रोसेस का डेल्टा एस आपका निगेटिव है. तो
So now I will try to explain you about delta G. So delta G calculation we understand from Gibbs-Helmholtz equation. तो अभी इसमें देखो आपका डेल्टा H निगेटिव है और आपका -3 इंटू डेल्टा एस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका डेल्टा जी निगेटिव कभी रहेगा? व्हाट इज द कंडीशन एट विच डेल्टा जी विल बी निगेटिव? लो टेम्परेचर, राइट। इतना बेसिक तो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लिया कि टेम्परेचर जब भी लो होगा इस रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव रहेगा। बट एज द टेम्परेचर विल बी मोर, what will happen? The reaction will go from spontaneous to what? Non-spontaneous, and maybe at a very high temperature the delta G can become what? Positive for this reaction. तो मैं इस रिएक्शन का अगर मुझे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डेल्टा जी से कनेक्ट करना है, टेम्परेचर को डेल्टा जी से कनेक्ट करना है, तो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी निगेटिव रहेगा। बट as the temperature will increase, this reaction will become non-spontaneous. Is this point clear to you? Yes, ma'am. तो अभी एलिंगम डायग्राम में हम क्या करते हैं? एलिंगम डायग्राम इज अ ग्राफ of delta G for this reaction plotted on y-axis versus temperature. एलिंगम डायग्राम में हम डेल्टा G को टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम क्लियरिंग राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड and I'll go on explaining you various aspects of this graph. ये डेल्टा जी है इन किलो जूल्स पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। सारे रिएक्शंस का बैलेंसिंग जो किया है फॉर पर मोल ऑफ ऑक्सीजन है। So I'm plotting delta G from negative to 0 and to positive. और टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे हाई होगा।
and this is the temperature in degree Celsius. अभी जो मैं lines draw करूंगी, each line is going to represent a reaction for formation of that particular metal oxide. And what is the variation happening of delta G with respect to temperature is what we are plotting. What is basic expectation? कि जैसे temperature बढ़ेगा, delta G के values from negative will go towards positive. Is Yes, what I ma'am. explained to you here. So the lines that I am going to draw will have a positive slope. Yes, As the ma'am. temperature will increase, delta G will go from negative to positive. And is the observation, most of the lines for different metals that I'm going to show you on the board will have positive slope. जिसका नहीं है, उसका explanation मैं दूंगी. So let me put some examples, some metal oxides variation on the board for you. So this is for calcium. मतलब calcium plus oxygen forming calcium oxide. अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रैंडमली ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, नंबर और टेम्परेचर देख के ड्रॉ कर रही हूँ. So this is the line that I have drawn is not having a positive slope. I'll explain you this line. This is for aluminium. This is for zinc. This is for a reaction, carbon, monoxide, reacting with oxygen, becoming carbon dioxide. And there is one unusual line which is this one. This is for a reaction, carbon reacting with O2 becoming carbon monoxide. तो ये कुछ लाइंस मैंने ग्राफ में डाल दिए हैं. So each line is formation of oxide. तो जिंक का लाइन का मतलब क्या है? This line is for a reaction zinc plus 1 mole of oxygen giving you ZnO. मैम थियोरेटिकली हर लाइन को एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना. हाँ, मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी. जो नहीं है वो नहीं है. वो क्यों नहीं है? एक्सप्लेनेशन पेंडिंग. तो जैसे मैग्नीशियम की नहीं है, कैल्शियम की नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग. बाकी सारे स्ट्रेट लाइन है, बट स्पेसिफिकली कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है. और ऊपर एक मर्क्यूरी है जो नहीं है. मैं पॉजिटिव वाले लाइंस में ड्रॉ किए. तो अभी यहाँ पे देखो,
ऊपर पॉजिटिव पार्ट में आई विल हैव टू to first is I showed you the lines. Now I have to give you explanation. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि एलिंगम डायग्राम इज शोइंग पोटेशियम मर्क्यूरी. 3 cases you clearly see change in slope. आप चेंज इन स्लोप देखते हो 3 cases में. ये जो चेंज इन स्लोप है, ये चेंज इन स्लोप स्लाइटली जिंक के लिए भी है. So there is a change in slope for zinc also. So what does this change in slope is indicating? Change in slope is indicating phase change. So what is the meaning of phase change? ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो ये टेम्परेचर तक सॉलिड रहेगा, उसके आगे वो लिक्विड हो गया. सेम इज फॉर मैग्नीशियम. मर्क्यूरी के लिए वो लिक्विड रहेगा, उसके आगे वो गैसियस हो गया. तो जहां पे चेंज इन स्लोप है, दैट इज योर चेंज इन फिजिकल स्टेट है बेटा. एक्चुअली वीडियो वापस फ्रीज हो गया. तो जो पहला कैलकुलेशन मैंने दिखाया था उसके हिसाब से सब मेटल ऑक्साइड्स के लिए ऑब्जर्वेशन वही है. पॉजिटिव स्लोप का मतलब है टेम्परेचर बढ़ते गया, आपका डेल्टा जी इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम स्पॉन्टानियस टू नॉन स्पॉन्टानियस. इससे समझता क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, इस पॉइंट पे आ जाते हैं. वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड. तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल ऑक्साइड क्या बन रहा है, लेस स्टेबल बन रहा है. तो अगर मुझे मेटल ऑक्साइड को ब्रेक करना है तो व्हाट शुड बी द टेम्परेचर यूज, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर, बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज बिकमिंग लेस स्टेबल, अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर. इसके लिए मेटल ऑक्साइड से जो हम रिडक्शन करते हैं that is carried out at high temperature. So theoretically I can say all oxides are thermally unstable provided we reach that temperature. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको. At certain temperature delta G 0 is going to become 0 और उसके ऊपर डेल्टा जी उस मेटल ऑक्साइड के लिए पॉजिटिव होगा. उस टेम्परेचर के नीचे फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज स्पॉन्टानियस और उस टेम्परेचर के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज नॉन स्पॉन्टानियस. सो आई कैन से theoretically all oxides are thermally unstable at a particular temperature. Is this point clear to you? मैम कोई डाउट है इस पॉइंट में किसी को? मैम अभी मैं उन लाइंस की बात करती हूँ जो पॉजिटिव स्लोप वाले नहीं दिख रहे हैं आपको. तो you clearly see 2 lines which do not have positive slope. One is this is almost going parallel to x axis and one is this. ये odd lines है इस पूरे ग्राफ में. Oh, what to do now? हे भगवान, क्या करूं?
आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। 2 बार मैं मीटिंग छोड़ के सर को होस्ट बनाया और फिर से ज्वाइन हो गई। We are in between an important concept, Ellingham diagram. I think I leave the lecture now. अगले टाइम फ्रेश में एलिंगम डायग्राम करेंगे। ये छोड़ के 10 मिनट के लिए अभी मुझे कुछ स्ट्रगल नहीं करना है। Only 10 minutes now. ठीक है? Let us end this meeting. I hope next time the problem gets sorted and we can continue with the lecture. I will restart Ellingham diagram next lecture. हम Ellingham diagram fresh lecture में पढ़ेंगे क्योंकि ये important concept है। ये मुझे ऐसे break में बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। ठीक है? So that's it for today. Sorry for the inconvenience. I really don't know what is going wrong, but I will try to sort it out, whatever it is. So thanks everyone. Bye. See you next time.